So we are done with the splinting part. As you can see on the camera, this is the splint. We have given a 9-inch wide splint, properly done. And now you can check the stability and the mobility of the tooth. I'll show you. Now the tooth is not mobile. You see the stability we have achieved. So it's very important for everybody watching out. This is another procedure to make your tooth stable. So we have done that. Thanks to ma'am. Thank you. So this is a classic case of generalized chronic periodontitis. As you can see, the patient got swollen gums. She's got nice pockets and generalized bone loss. So we have decided to go for flap surgery for the patient. We are doing the initial treatment for her. That is the non-surgical treatment initially. After 15 days, we'll plan for a surgical approach. Side by side, we have a similar patient who had generalized periodontitis initially, but just because he didn't get it treated, we are extracting all his teeth and going for basal bone implant because the amount of bone loss does not support conventional implants. So to all the viewers, to all the patient out there, so just a request, humble request, that if you do not follow things on time, this is what things happen. So both the case will just show you how it is, and then you can decide whether you want to get it done initially or whether you want to wait and get basal bone implant or conventional implant for yourself. Thank you so much. Hey everybody, I'm Dr. Pathak from Pathak Dental Clinic, and आज की जो केस है वो है हमारी full mouth matching case. So patient, a young patient, 32 years old man, she visited us with bleeding gums, swollen gums, and generalized chronic periodontitis. So उनका हमने फेलिसिटी निकाला था, उनका हमने प्री-स्केलिंग किया था, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो करके हमने 14 डेज तक उनको दवाई दी थी, एंड आफ्टर दैट वी प्लान अ फ्लैप सर्जरी फॉर हर. So after flap surgery, आज उनका फॉलो अप है फॉर सुचर रिमूवल, एंड उसकी जो फोटोज है हमने दी है और वो अपलोड कर देंगे हम लोग. तो फैबुलस रिजल्ट है. तो मैंने सोचा कि हम लोग मैडम से एक बार पूछे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, हमने क्या किया और ये करना कितना जरूरी था. एंड आज हम लोग जो लास्ट है, जो उनका ट्रीटमेंट रह गया है, वो उनका टूथ स्प्लिंट करेंगे, क्योंकि जो स्लाइट मोबिलिटी है एंटीरियर टूथ में, तो उसको स्टेबल करने के लिए आपको स्प्लिंटिंग करना बहुत जरूरी है. आई विल शो यू हाउ द मोबिलिटी लुक्स लाइक. यू सी द टूथ इज मोबाइल. दिख रहा है? तो सो टू मेक श्योर ये दांत आपका स्टेबल रहे, यू नीड टू स्प्लिंट द टूथ फॉर अ certain amount of time. It's very important to understand that most of the patient or most of the dentist, they consider splinting as a permanent option for your mobile tooth, but this is not the fact, because if you keep the splint, it sometimes tends to attract more plaque and calculus and results in more deterioration. It's very important आपको समझ में आए कि आपको स्प्लिंट कब करना और कब निकालना. तो मैम से पूछते हैं हम लोग कि कैसा एक्सपीरियंस था मैम, क्या हुआ था, क्यों आए थे हमारे पास, एंड कहाँ से प्रोसीजर चालू हुई, जो डर था आपका ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या फर्क आया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है. स्टार्टिंग में गम्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत ज्यादा ही येलोइश हो रहे थे दांत, और मुझे दिख रहा था कि बहुत ज्यादा गंदगी है. और इससे 2 साल पहले मैंने एक डेंटल क्लीनिंग के लिए मैं गई थी, तो तब उन्होंने भी मुझे बोला था, सजेस्ट किया था कि बहुत ज्यादा गंदा हो गया है और पायरिया का इनिशियल स्टेज है, तो आप उसको थोड़ा सीरियसली लेना. बट मैंने उसे अवॉइड किया बिकॉज मुझे पेन होने का डर लगता था. सो आई अवॉइडेड द होल प्रोसीजर. और फिर 2 साल बाद वो गम ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर मैं सर के पास आई, तो सर ने मुझे बताया कि अब इस टाइम पे फ्लैप सर्जरी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर अभी नहीं किया तो फिर आगे 4-5 साल के बाद पूरे दांतों में ही वो इन्फेक्शन फैल जाएगा और टूटने का डर रहेगा. तो मुझे ये लगा कि 2 साल पहले मैंने ऑलरेडी अवॉइड कर दिया था, तो अगर अभी भी अवॉइड करती तो शायद और ज्यादा खराब हो जाते था. सर ने भी यही कहा. तो फिर आई थॉट कि हाँ मुझे कराना चाहिए. तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल. पहले मुझे डर लग रहा था कि मुझे पेन ज्यादा होगा और इवन इसके बाद में कैसा होगा, वो बढ़ जाएगा या कुछ और साइड इफेक्ट्स होंगे क्या. बट सर रियली कंफर्टेड मी, और अभी पेन तो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ प्रोसेस में. थोड़ा बहुत जो भी सेंसिटिविटी रहती है या हल्का फुल्का जो भी था वो था. बट मैं जब भी बोल देती थी कि पेन हो रहा है तो देवर लाइक कि ठीक है, फिर वो अच्छे से और ज्यादा
स्लोली करते थे प्रोसेस। तो हाँ, प्रोसेस पूरा बहुत ही स्मूथ था। एवरी टाइम जो भी प्रोसेस होता था उसके बाद मुझे फॉलो अप के लिए फोन भी आता था हर वीक। सो यस, प्रोसेस बहुत स्मूथ था और अभी आई फील कि काफी ज्यादा मतलब मुझे खुद ही डिफरेंस दिख रहा है दांतों में, क्लीन दिख रहे हैं दांत और खुद ही फील भी होता है। बिकॉज पहले बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम मुझे फील होता था। अब वो भी इतना ज्यादा क्या अभी तो नहीं लग रहा है। एंड देन एज सर सेड कि मुझे अब और ज्यादा अच्छे से केयर करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। सो आई विल डू दैट। जो एक डर रहता है पेशेंट के मन में सर्जरी को लेके कि सर्जरी करना पड़ेगा या फ्लैप करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट इतना सीरियसली लेता नहीं है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर हमें पेन नहीं हो रहा है या दुख नहीं रहा है तो हमें ये सर्जरी क्यों करनी। तो इसके बारे में आपका क्या, जैसे आपको भी एक डर था सर्जरी कराने से पहले, तो हमने देखा कि जब आप काम करवा रहे थे तो आप बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत काम थे, कंपोज थे। तो वो जो डर था आपका इनिशियली, जो वो सर्जरी जैसे देखा होगा या आपने समझा होगा, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस था? अभी आपको कैसा लगता है कि वो जो डर है वो ओवरकम हो गया है या फिर? ओवरकम तो हो गया। पहले मुझे डेंटल क्लीनिंग कराने के लिए भी मैं बहुत बार सोचती थी, 2-2 साल में एक बार कराती थी मैं, जब बहुत एक्सट्रीम जरूरत पड़ जाए। बट नाउ आई एम श्योर कि मैं हर 3 महीने 6 महीने में डेंटल क्लीनिंग भी कराऊंगी। तो वो जो एक सर्जरी का आप कह रहे हैं कि दांत में मुझे पेन नहीं था, दांत या गम्स में पेन नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी। तो आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, ब्लीडिंग तो चल जाएगा। It's very normal. हाँ, Because नॉर्मल। most of the patient have this कि bleeding है gums में से, तो it might be because of brushing or it might be because of some other reasons. So it is very important for everybody watching this video to understand that जो फ्लैप सर्जरी होती है जब आप करवाते हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। कोई भी डेंटिस्ट जब आपको बोले कि फ्लैप करवाना है तो मेक श्योर कि आप डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन लो, आप किसी पेरियोडोंटिस्ट को दिखाओ एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली द कंडीशन इज एंड ऑल्सो द सीवियरिटी कि वो कितना प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैडम का जो आगे का दांत है वो बोन लॉस की वजह से हिलने लगा है। तो ये अगर कंडीशन उनकी और क्रोनिक हो जाती तो जो मोबिलिटी भी 1 या 2 दांतों में है वो बाकी दांतों में भी मोबिलिटी दिखना चालू हो जाती। So it is very important for everybody watching this video to understand the importance of not only your teeth but also your periodontium, which compromises of your gum and the bone all together, which will tend to support your oral health. So thank you so much मैम कि आपने हमें चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया आपको ट्रीटमेंट करने की, और इसको वीडियो में हम लोगों ने ये कर सके आपकी वजह से। So thank you.